welcome to the next video of area related to circles. Let's do some simple questions from exercise 12.2 which are simply based on this formulas. First question, find the area of the sector where the radius is 6 centimeter and the sector angle, that is theta, is 60 degrees, and you have to find area of sector. First let me show you using figure what does area of sector look like. अगर ये एक सर्कल है और ये आपका एंगल है जो कि 60 डिग्री है, सो दिस इज व्हाट इज एरिया ऑफ द कंप्लीट सेक्टर. दिस इज व्हाट सेक्टर लुक्स लाइक. सो एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. जस्ट पुट द वैल्यूज. थीटा की वैल्यू 60, 60 अपॉन 360 इंटू पाई. इन्होंने बोला है कि पाई को 22/7 यूज़ करना है इफ़ अदरवाइज स्टेटेड. अगर कुछ और स्टेटेड है, यू जैसे इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू √3 की वैल्यू 1 या पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ होगी, तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज 22/7 यूज़ करेंगे. और अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो वी विल नॉट लीव आवर क्वेश्चन इन द वैल्यू ऑफ √3, वी विल कन्वर्ट इट इनटू decimal points. And radius is given to us as 6, so this is 6 square, right? So obviously cancellation आपको दिख ही रही है, 6 6 36, तो ये आ गया 10, 0 और 0. so आपका आंसर आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, 6 2 12, 13 upon 7 centimeter square. There is no need to convert it into decimal point until asked for, so you can leave it in the fraction, आपको full marks मिलेंगे. सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बट नाउ द क्वेश्चन सेज इन क्वेश्चन नंबर 2 you have to find area of what? Area of the quadrant. Let me show you what is a quadrant. Whose circumference, now हमें radius नहीं given है, हमें circumference given है 22 centimeter और ना ही हमें theta given है. First let me explain you what is meant by quadrant. जब हम अभी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4. तो यानी कि पूरा सेंटर एंगल पूरा जो है वो पूरा फुल सर्कल का मेजर अगर 360 होगा तो 1/4 कितना होगा बेटा, वो आपको पता ही है, 360 डिवाइडेड बाय 4. दैट इज फॉर द क्वाड्रेंट विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ओनली. The center angle is 90 degree. So you should know this, that for a quadrant center angle is always 90 degree. And again let's अब circumference given है तो r की वैल्यू कैसे आ जाएगी, हमें circumference का फॉर्मूला पता है, 2 pi r equals to 22. So can I say r is equal to 22 upon 2 pi? Now here I am telling you a time saving trick. पाई की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, just put the value as it is. तो this is 90 upon 360 pi r square. r square मतलब 11 by pi into 11 by pi. और अब pi और pi कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 9 1s are right and 9 4s are 36. So this is now let's put the value of pi. 11 into 11 upon 4 it into 22 by 7. So 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा, right? So answer will be, again cancel, 11 1s are 11 2s are, so this is 77 by 8 centimeter square. You can leave it here only, or if you want you can convert it into decimal point. So here we have learned a new term which is quadrant. Quadrant क्या होता है, 1/4 of a circle. यानी कि quadrant का जो center angle होता है that is sector. Quadrant is also form of a sector जिसमें center angle 90 degree होता है. This is what we have learned. Let's talk about the third question, children. Third question क्या कहता है, the length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. एक clock है, उसका length of the minute hand, एक minute hand है, उसका clock जो है उसकी length 14 centimeter है, right? Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो 5 minutes के अंदर वो कितना area sweep करता है. So this is what is we want. So for this we should know the center angle. So can I say the radius is 14 centimeter, which is length of the minute hand clock? Right? And area we don't know. Now आपको
जस्ट अगेन अ न्यू लॉजिक, कॉमन सेंस वाला लॉजिक है बेसिकली। अगर हम घड़ी देखें और मिनट हैंड देखें, अगर मिनट हैंड अभी अभी फ़िलहाल वो 12 पे है, तो वो वापस पूरा घूम के 12 पे कब आएगा? मिनट, वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट। कैन आई से कि 60 मिनट्स के अंदर जो फुल एंगल है वो कवर हो रहा है, यानी कि 360 डिग्री एंगल पूरा कवर हो रहा है। तो 1 यूनिटरी मेथड, तो 1 मिनट के अंदर कितना होगा बेटा? 360 अपॉन 60, राइट, कैंसल आउट करो, दिस इज 6 डिग्रीज, राइट। और हमें कितना निकालना है? 5 मिनट्स के अंदर। सो 5 मिनट्स के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल कवर करेगा? 5 इंटू 6, दैट इज 6 5 हाउ मच? 30 डिग्रीज। So now we have our theta, we have our radius, and now we know हमें area of sector निकालना है। तो formula will be theta upon 360 into pi, again pi is 22/7, r square, r is 14 into 14. So this is how you will calculate. Please simplify and find out the answer. So when you will find out the answer, it will come out to be 154 by 3 centimeter square. So again we have learnt a new concept in this question also. It was not a very direct question. Okay. Question number 4. Let's talk about the fourth question. A chord of circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at center. एक सर्कल है, उसका एक कॉर्ड है, वो सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड करता है. Right means this is a 90 degree. Theta is 90 degree. And radius is given to us as 10 centimeter. अब इसमें गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, तो हम वही करेंगे. फाइंड द एरिया, फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. फर्स्ट लेट मी हाईलाइट कि माइनर सेगमेंट क्या है. Children, minor segment is, if I use a highlighter and if I take the yellow color, so this is basically the minor segment, right? So if I name it as OAB, so can I say area of minor segment will be equal to area of sector minus एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, जो कि क्या हो जाएगा? दिस इज 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर, माइनस हाउ विल यू फाइंड आउट दिस एरिया? चिल्ड्रन, ये 10 है, ये 10 है, राइट? तो चेक करो, इफ द सेंटर एंगल इज 90 डिग्री, कैन आई से इट इज हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड. आप किसी को कुछ भी यूज कर सकते हो. आप AO को बेस ले सकते हो, BO को ऑल्टीट्यूड ले सकते हो, या BO को बेस ले सकते हो, या AO को ऑल्टीट्यूड ले सकते हो. लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब ये एंगल 90 डिग्री है. अगर 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल है, सो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला. ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज. सो दिस इज 1/4. पाई की वैल्यू उन्होंने बोला 3.14 यूज करो, इंटू 100 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10. Right, children? So when you will simplify this, when you will simplify this, you will get that the area of the minor segment is 78.5 minus 50, that is 28.5 centimeter square. Okay, so the second part of the question क्या कहता है? Find the area of major sector. Children, now let me show you, there are two ways. Area of major sector, एक तो तरीका है कि आप एरिया ऑफ सर्कल पूरा निकालो माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कर दो, यानी कि माइनर सेक्टर, जो कि ये आया है 78.5. लेकिन ये थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, सो आई डोंट वांट यू टू यूज दिस मेथड. कैन आई ऑल्सो से दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज 360, मेजर वाला 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. चिल्ड्रन, कैसे आया ये समझाती हूँ. मेजर सेक्टर का मतलब है ये वाला पूरा पोर्शन, राइट? ये भी तो सेक्टर ये, लेकिन इसका जो ये एंगल है, सेंटर एंगल, ये कैसे आएगा? ये ऐसे ही तो आएगा. फुल है 360, 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट?
So that is how you will get your area of major sector. So इसको आप solve करोगे, this will come out to be 235.5 centimeter square. So this is a shortcut which I have taught you. Rather than finding you can use this also, but it will take little more time. That's it. Okay. That is question number 4 for you. Let's start question number 5. Question number 5 क्या कहता है? Again radius given है 21 centimeter, center angle given है 60. एक छोटा सा बना लेते हैं so that clear हो जाता है. This is given to us as 60. और हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट वाला लेंथ ऑफ आर्क. जब हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं बेटा, तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस कर्व्ड पोर्शन, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क. और इसका फॉर्मूला अगेन मैंने आपको लिखवाया था फर्स्ट वीडियो में, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr. तो तरीका क्या है याद रखने का? लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ जो है वो थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब एरिया की बात हो रही होगी तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल से, राइट? लेंथ की बात है तो 2πr से मल्टीप्लिकेशन. तो थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर. अब इसमें पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ नहीं बोली, तो 2πr 2 इंटू 22/7 यूज़ करते हैं. रेडियस इज 21. प्लीज़ कैंसिल इट आउट और हमारा आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर. यूनिट याद रखिएगा क्योंकि लेंथ है. नेक्स्ट का पार्ट करते हैं सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर. अगेन बहुत इजी. एरिया ऑफ सेक्टर मीन जब भी सेक्टर की बात हो रही है यानी कि माइनर की ही बात हो रही है, तो फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर, दैट इज 60 अपॉन 360 इंटू पाई, that is 22/7 into r square, that is 21 into 21. So this is what is the area of sector ka formula. So answer will come out to be 231 centimeter square, right children? And the third part, area of segment. Okay, now area of let me just draw this line once again. Okay, when we talk about area of segment children, means I am talking about this, जो कि क्या है हमें पता ही है. एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, राइट चिल्ड्रन? अब इसमें आया कैच कि हमें एरिया, अब एंगल तो 90 डिग्री है नहीं, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल. चेक करिए, ये अगर एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. कैन आई ऑल्सो से दैट इफ दिस इज x चिल्ड्रन, सो x प्लस 60 is equal to equals to 180 sum angle property. So x will come out to be 60, यानी कि ये equilateral triangle है. So if you remember, area of equilateral triangle क्या होता है? √3/4 side square, right? यही होता है ना? So area of triangle AOB will be √3/4 side मतलब radius, right children? Radius हमें कितना गिवन है? 21 का स्क्वायर. Okay, so you can put your value here and calculate. अच्छा, इन्होंने क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं गिवन, so we can directly say that area of the segment will be what? 231 minus √3/4 into 441, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर √3 की वैल्यू पेपर में गिवन है तो आप √3 की जगह 1.73 करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो, राइट? अच्छा, इट इज़ गिवन, क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं गिवन है, 6 में गिवन है. तो 6 में आई विल लेट यू नो हाउ टू कैलकुलेट. ओके, सो ये अगेन हमने इसमें एक नई चीज़ सीखी कि अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो यानी कि जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो इक्विलेटरल होगा. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो एरिया यूज होगा वो क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर वाला फॉर्मूला. दैट इज द ट्रिक विच वी हैव लर्नड इन क्वेश्चन नंबर 5.
Let's do question number 6, children. 6b. Radius again. Radius 15 centimeter. Again, center angle 60 degree. Find the area of the minor and the major segment. So, area of minor segment. Again, फिगर ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से. ये एंगल 60 है. माइनर सेगमेंट मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं. सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगेन दिख रहा है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर. And why √3/4 r square? Please mention the reason that triangle, suppose this is OAB, triangle OAB is equilateral, right? जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया है, right? So therefore ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा. वैल्यू पुट कर दीजिए. थीटा इज हाउ मच? 60 अपॉन 360. पाई की वैल्यू उन्होंने बोला हुआ है हमें 3.14 यूज़ करनी है. आर स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर माइनस √3 की वैल्यू अगेन वी हैव टू यूज़ 1.73 अपॉन 4 इंटू 15 का स्क्वायर. राइट चिल्ड्रन? सो ये आप इसमें से आप सिंप्लीफाई कर लोगे और आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. राइट? अब हमें निकालना है सेकेंड पार्ट, दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. तो वो तो बहुत ही, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. That is, area of circle means pi r square minus area of minor segment 20.43 ऑलरेडी आ चुका है. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए. पाई की वैल्यू अगेन 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू 15 का स्क्वायर. अगेन इसको सॉल्व कर लीजिए. दिस इज 686.08 centimeter square. This is the area after solving this calculation. Okay children, that is question number 6 for you. Alright, question number 7. A chord of a circle extends, okay, जहाँ पे 120 डिग्री सेंटर एंगल आ जाएगा, that is not in your syllabus, right? आप सिर्फ एक्यूट एंगल्स के साथ वर्क करोगे. दैट मीन्स द एंगल्स हैव टू बी लेस दैन 90 डिग्री. ओके, सो यू विल ओनली वर्क फॉर एक्यूट एंगल्स. फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें सेंटर एंगल 120 है, यू विल नॉट वर्क ऑन दैट. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो विच वॉज द बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेशन. अब आगे की जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हैं, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट चिल्ड्रन, थैंक यू. If you have any doubt till question number 6, kindly mention in the comment below. Thank you, children.